Hello everyone, welcome to my class. Dear students, today I am here with a new accountancy video of class 12th that is on the chapter number 2, that is accounting for partnership firms. Dear students, today the topic of discussion is interest on loan taken by partner from the firm. Interest on loan taken by partner from the firm. इस वीडियो में हमारा जो टॉपिक है वो क्या कहता है कि जब हमारा पार्टनर जो है वो फर्म से लोन लेता है, जब हमारा पार्टनर फर्म से लोन लेता है तो ऐसे में जो इंटरेस्ट है वो हमने पार्टनर से चार्ज करना है और फर्म ने रिसीव करना है. सो इन दिस केस दिस इंटरेस्ट ऑन लोन विल बी एन इनकम फॉर द फर्म. हमारी फर्म के लिए क्या होगा, ये इंटरेस्ट इनकम होगा या गेन होगा. सो इट विल बी क्रेडिटेड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. इसे हम क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट करेंगे. इन द प्रीवियस वीडियो वी हैव डिस्कस्ड इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन बाय फर्म फ्रॉम द पार्टनर एंड दैट interest was a charge against the profits of the firm. that was the expenditure for the firm. फर्म के लिए वो क्या था, एक एक्सपेंडिचर था, तो उसे हम क्या करते थे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बच्चों डेबिट करते थे. नाउ इट इज ऑपोजिट टू द प्रीवियस कंसेप्ट, सो इट विल बी क्रेडिटेड इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. दैट इंटरेस्ट वाज एन एक्सपेंडिचर बट दिस इंटरेस्ट इज एन इनकम फॉर द फर्म. दैट इंटरेस्ट वाज डेबिटेड इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड अ कंपल्सरी पेमेंट एंड दिस इंटरेस्ट इज एन इनकम फॉर द फर्म, so it will be credited in profit and loss account. For crediting the interest in profit and loss account there will be two journal entries. Now the first journal entry will be partners capital account debit to interest on partners loan. Entry will be partners capital account debit to interest on partners loan, and the second entry will be interest on partners loan account debit to profit and loss account. In the first entry we have debited partners capital account with the amount of interest on partners loan. It means that we are charging the amount of interest on loan from the partners capital account, so it will be debited. जब भी हम पार्टनर के कैपिटल अकाउंट से कोई अमाउंट चार्ज करते हैं, कोई अमाउंट कट करते हैं, तो उसका अकाउंट डेबिट हो जाता है. दैट इज वाई वी हैव डेबिटेड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट विद द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट. नाउ वी हैव क्रेडिटेड इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन बिकॉज इट इज एन इनकम फॉर द फर्म. सो व्हेन it is credited in the first entry, it is credited in as interest on partners loan. In the next entry it will be debited. Interest on partners loan account will be debited to profit and loss account. It means that we are transferring the amount of interest on partners loan which we have charged from the partner to profit and loss account. हम यहाँ पर ट्रांसफ़र कर रहे हैं. फर्स्ट एंट्री में हमने पार्टनर की कैपिटल अकाउंट से अमाउंट कट किया और ये हमारी इनकम था इसलिए हमें इसे क्रेडिट किया. एंड इन द सेकेंड एंट्री वी हैव डेबिटेड दिस अकाउंट बिकॉज वी आर ट्रांसफरिंग द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. हमने यहाँ पर ट्रांसफ़र कर दिया और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट हो गया. दैट मीन्स यहाँ पर एक इनकम हमने क्रेडिट की, एक गेन हमने क्रेडिट किया, तो इसलिए इसको क्रेडिट कर दिया. Profit and loss account is a nominal account. Whenever there will be profit, it will be credited. So this concept says interest on partners loan is an income for the firm, so it will be credited in profit and loss account, and at the same time it will be debited from the partners capital account because it will be deducted from the partners capital account. In the Partnership Act there is no provision regarding this interest on loan. Whether interest on loan will be charged from the partner or not, there is no provision regarding this in the Partnership Act. So the provisions of this act says that whenever there is no provision regarding any concept in the Partnership Act, so the concept or the decision regarding the concept will be taken as per the agreement between the partners. यानी इस concept के ऊपर जो decision लिया जाएगा, इस concept में जो भी condition decide की जाएगी वो होगी as per the agreement among the partners. partners ने आपस में जो भी agreement किया होगा उसके बेसिस पर इसकी कंडीशन जो है वो डिसाइड हो जाएंगी. ठीक है, यानी इंटरेस्ट ऑन लोन पार्टनर से चार्ज करना है या नहीं करना है तो कितनी परसेंट से करना है, दैट परसेंटेज विल बी डिसाइडेड एज पर द एग्रीमेंट अमंग द पार्टनर्स. यहाँ पर कोई कंपल्सरी, कोई फिक्स्ड रेट नहीं है बच्चों, कोई स्पेसिफाइड रेट नहीं है, तो जो भी रेट होगी वो पार्टनर्स में आपस में मिलकर डिसाइड की जाएगी एज पर द एग्रीमेंट. So I hope this concept is clear. Now we are moving to the next concept, that is rent paid to the partner. Rent paid to the partner, the concept says whenever the firm needs any building for running the functioning, then the firm can take the building on rent फ्रॉम द पार्टनर. यानी पार्टनर अपनी बिल्डिंग फर्म को रेंट पर प्रोवाइड करवा सकता है. अब जैसे फर्म ने कोई बिल्डिंग आउटसाइड पार्टी से लेनी थी वैसे ही एक पार्टनर से ले ली. अब यहाँ पर जैसे हमने आउटसाइडर को रेंट पे करना था वैसे ही हम रेंट जो है वो पार्टनर को पे कर देंगे. ठीक है, सो वी कैन से this rent is for the building which will be used by the firm यूज़ करेगी जिस बिल्डिंग को, उसका रेंट है ये. तो ऐसे में जो भी रेंट है ये एक चार्ज है अगेंस्ट द प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म के प्रॉफिट्स पर एक चार्ज होगा
क्योंकि ये एक्सपेंस फर्म का है और कोई भी एक्सपेंस जो फर्म का होता है वो कंपल्सरी पेमेंट होता है. कंपल्सरी पेमेंट मीन्स चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म. प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म कंपल्सरी पेमेंट मीन्स whether there is profit or loss, full amount of interest will be paid to the partner. And whenever it is a compulsory payment, it will be debited in the profit and loss account. Profit and loss account में ये क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा. ठीक है, डेबिट कर दिया. अब इसके लिए हमारी जो नेसेसरी एंट्रीज बनेंगी बच्चों रेंट से रिलेटेड वो क्या होंगी, जैसे आपकी इंटरेस्ट ऑन लोन के केस में बनी थी, जो प्रीवियस वीडियो में हमने एंट्रीज बनाई थी बच्चों, वैसे ही बन जाएंगी. जैसे कि इसकी फर्स्ट एंट्री क्या होगी, अब फर्स्ट एंट्री इसकी होगी, अब क्योंकि रेंट हमारे बिजनेस के लिए एक एक्सपेंस है तो हम इसे क्या करेंगे, रेंट अकाउंट डेबिट. और किस अकाउंट के थ्रू ही क्रेडिट होगा, रेंट पेएबल अकाउंट. फर्स्ट एंट्री विल बी रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट पेएबल अकाउंट. दिस एंट्री सेज रेंट हमारे बिजनेस का एक एक्सपेंस है और ये एक्सपेंस अभी पेएबल है. तो पेएबल मतलब आपकी एक लाइबिलिटी भी क्रिएट कर देता है. एक्सपेंस है साथ ही साथ ये लाइबिलिटी क्रिएट करता है बिकॉज रेंट हैज़ नॉट बिन एक्चुअली पेड. एक्चुअली पे नहीं किया गया, पे किया जाएगा. सो इट विल बी ट्रांसफर टू रेंट पेएबल अकाउंट and then in the next entry it will be credited in profit and loss account, and profit and loss account will be debited with the amount because this is an expense for the firm. So profit and loss account will be debited to rent account and rent account is closed by doing this. So in the case of rent there will be two entries. First entry will be rent account debit to rent payable account. Second entry will be profit and loss account debit to rent account. Rent account debit to rent payable account, profit and loss account debit to rent account. These two entries are specified for rent. So dear students, this was the case of rent. This case says rent paid to the partner will be a charge against the profits of the firm. It will be a compulsory payment. When it is a compulsory payment, it will be paid in full whether there is profit or loss, and it will be debited in profit and loss account में इसको debit किया जाएगा. There will be two journal entries for this. First is rent account debit to rent payable account. Second will be profit and loss account debit to rent account. रेंट को यहाँ हमने डेबिट किया क्योंकि फर्म के लिए एक्सपेंस है, एंड बिकॉज दिस एक्सपेंस हैज़ नॉट बीन पेड इन कैश. हमने इसे कैश में पे नहीं किया है, हम इसे पे करेंगे. सो इट विल बी ट्रांसफर टू रेंट पेएबल अकाउंट. करंट लाइबिलिटी में हमने ट्रांसफर कर दिया. देन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट किया बिकॉज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ये डेबिट हो रहा है. क्यों डेबिट हो रहा है, क्योंकि हमारे फर्म के लिए एक्सपेंस है. एंड टू रेंट अकाउंट, इससे रेंट अकाउंट क्लोज हो गया. रेंट अकाउंट क्रिएट हुआ, डेबिट करके क्रेडिट करके इसको क्लोज कर दिया. ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप दिस इज क्लियर फॉर यू. सो दिस वाज टुडेज टॉपिक. इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस द फर्दर टॉपिक्स. थैंक यू गाइज.